impossible becomes possible, where reality bends to the will of the unseen. Today, we explore this enchanting world in this session: myths, mysteries, and modern magics, stories that transcend time, with Akshat Gupta in conversation with Mrunal Naik. After listening to this introduction, I hope all of you must be remembering Gandalf from from Lord of the Rings. Can you tell me the same character from Harry Potter? Dumbledore. I don't know. I mean, we are discussing that only. So today, to put more light on this, we have Akshat Gupta. Akshat Gupta is an Amazon best-selling bilingual author born in Ambikapur, Chhattisgarh, and currently based in Mumbai. He is also the most viewed author online. Akshat is the creator of the highly acclaimed trilogy, The Hidden Hindu, which seamlessly blends mythology and science fiction. As a versatile artist, Akshat has contributed as lyricist, Bollywood screenwriter, and poet, being involved in 9 Bollywood films and 2 web series. For this session, we have moderator Dr. Mrunal Naik, a versatile academician and accomplished administrator, holds a PhD in business management, MBA, and a diverse array of expertise in commerce, law, music, and literature. Serving as the project director of the Orange City Literature Festival, she has played a pivotal role in its inception and growth. As the TEDx Civil Lines licensee and organizer, Mrunal contributes significantly to the dissemination of transformative ideas. As the topic itself is so very captivating that can make all of us to dwell deep into it, forgetting the time frame, I must appreciate the guests of this session for having accepted to structure this topic into a time frame of 40 minutes, inclusive of the audience question. Also, I humbly request the august gathering here to silence their mobile phones or switch them off so that the noise don't disturb the link of listening feast. At this moment, I would like to inform the audience that the next session in this hall is going to be reading from Ramblings of Bandra Boy by Joy Bimal Roy. Ladies and gentlemen, without any further ado, I hand over the session to the dignitaries. Over to the moderator. Thank you. Thank you. Thank you, Pravartan sir. Welcome all. Thank you so much for gathering here. And a huge thank you to Akshat ji that you accepted our invitation and what can I say? आप यहाँ पे आए ये बहुत बड़ी बात है because he might have cancelled so many schedules of his to be here in this literature festival. So huge round of applause and a great thank you. I recollect the time when Akshat Gupta sir came, and not only with the seniors, he is a super buddy with the kids also. और बच्चों ने ऐसी धूम मचाई थी इनके साथ में, we cannot forget that moment till date. So आज थोड़ा different style में we'll do everybody think. At that time you made kids think about so many things with your activity and discussions. Today we'll make everybody think on the myths, mysteries, and current world, which you usually do. So welcome again. And my very first question to you is, पहला novel, bestseller, after being a successful entrepreneur, what made you think about entering into writing? सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम उर्मिला पुत्र अक्षत गुप्ता है। अगर आप में से किसी को ना पता हो तो आई एम अ फुल टाइम हाउस हस्बैंड, पार्ट टाइम ऑथर, स्क्रीन राइटर, पोएट एंड लिरिसिस्ट। आपके सवाल का जवाब पहले एक शब्द में दे देता हूँ, उसको एलाबोरेट थोड़ी देर बात करेंगे। द आंसर इज हेट्रेड। व्हाट मेड यू बिकम अ सक्सेसफुल ऑथर आफ्टर बीइंग अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर वाज योर क्वेश्चन। वन वर्ड, हेट्रेड। व्हाई? आई विल कम टू दैट। उसके पहले 2-3 चीज़ें। एक मेरा इंट्रोडक्शन हो गया। एक तो सर ने मुझे बोला, अभी माइक पे सर ने बोला कि तुम्हारे पास 40 मिनट है, 5 मिनट तो उन्होंने पहले खा लिए ये समझाने में कि 40 मिनट है तुम्हारे पास।
उसके बाद सर ने बोल दिया डम्बलडोर और गैंडल्फ में उसे पहले बताना चाहिए था, दाढ़ी बड़ी करके आता मैं, बहुत ही छोटी है। और तीसरा कि मैं बहुत सारे शेड्यूल्स कैंसिल करके आया और आप मुझे धन्यवाद बोल रही हैं। आप 2-3 कारण हैं यहाँ होने का। पहला कि आप बनते बनते दोस्त हो चुकी हैं तो आपको मना नहीं कर सकते थे। दूसरा नागपुर में मेरी बुआ रहती हैं। और तीसरा मुझे ऑरेंजेस पसंद है। थैंक यू सो मच। हिंदी सब समझ लेंगे ना, क्योंकि इंग्लिश मेरे को ठीक ठीक आती है, मराठी बिल्कुल नहीं आती। Why hatred? See, there are so many words and statements and quotations that we have been hearing since our childhood. Things like किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए. Things like forgive and forget. Dementia है मेरे को. How can I forgive and forget? Because if I will learn or I will practice the tendency of forgetting things, trust me, I will also forget all the good things. I will forget that she's my friend. Because I will develop that idea of forgetting things. तो ये कुछ बातें ऐसी हैं ना जो पन्नों पे अच्छी लगती हैं और स्टेज पे माइक लेके बोलना अच्छा लगता है कि forgive and forget. नहीं होता ऐसा। मेरे साथ कुछ कोई गलत करेगा तो मैं उसको याद रखूंगा और अपने समय का वेट भी करूंगा, क्योंकि I have hatred. I am as ordinary as everybody else and I am not wanting or trying. And when I am saying I am not talking about myself. I am talking about all of us. You know, everybody, we are all normal people. So it happened in a way that I was running a chain of successful restaurants in Indore, Madhya Pradesh, and everything was going hunky-dory when my wife fell in love with somebody else, and my friend only, and left me. And I was not ready to take that, you know. तो आपको बचपन से बहुत सारी चीज़ों के लिए तैयार कराया जाता है, लेकिन God has His own plans. तो भगवान जैसे टीचर्स होते हैं ना, हमेशा से उनको पता होता है कि तुमको क्या आता है, तो क्वेश्चन पेपर में वो पूछते हैं जो तुमको नहीं आता है। तो आप कितनी भी तैयारी कर लीजिए, समय को पता होता है कि आप क्या नहीं झेल सकते हैं, एंड अकॉर्डिंगली समय आप पे यू नो इट थ्रोज स्टोन्स ऑन यू. सो आई वाज नॉट रेडी टू टेक इट, एंड सो रेस्टोरेंट्स ठीक ठाक चल रहे थे, नॉट वेरी सक्सेसफुली, बट ठीक है, काफ़ी कर्जे में था मैं. आई हैड ह्यूज डेट्स. एंड देन केम अ टाइम व्हेन मुझे लोगों के और बैंक्स के 3.5 करोड़ रुपए लौटाने थे, 3.5 CR अप्रॉक्स. और हालत ये थी कि अपने शरीर के कपड़े उतार के भी डेटर्स को दे देता ना, तो भी 3.5 CR खड़े थे. ओवरऑल तो ज़्यादा था. आफ्टर सेलिंग एवरीथिंग, नॉट हैविंग एनीथिंग, दैट वाज द लास्ट अमाउंट दैट आई वाज स्टिल सपोज टू पे पीपल. और उस समय ये सब भी चल रहा था लाइफ में. सो आई ट्राई टू कमिट सुसाइड. आई ट्राई टू एंड माई लाइफ in 2014, 4th of May. तब तक I never in my wildest dreams I thought to become an author and write a book and come to Nagpur on invitation. बुआ बस बोल देती थी ये फंक्शन है, आ जाओ. खैर, so ये सब जब चल रहा था and I tried to end my life, doctors were not sure for good 5 days whether they'll be able to save me or not, but here I am saved. एक शब्द है हिंदी में विडंबना, अंग्रेजी में आयरनी बोलते हैं, और शशि थरूर की इंग्लिश में पैथस भी कहते हैं. आयरनी ये है कि इफ यू विल ट्राई टू कमिट सुसाइड, सरकार विल पुट अनदर केस ऑन यू दैट यू वर ट्राइंग टू किल योरसेल्फ. So one person who is super depressed, who is wanting to end his life, is put on another case that why are you depressed? No, why were you trying to end your life? Your life doesn't belong to you. Your life belongs to us. So उस केस में while I was sitting outside the court, actually in the police station, and they were my parents, I am the elder son. At that time my age was 33. So it was a big shock to my parents that their elder son, age 33, is trying to end his life. So they were also super depressed, which is when there were a couple of people standing from my ex-in-laws. And then they said, देखो कितना बड़ा failure है ये आदमी. 6ठी क्लास में फेल हो गया अंबिकापुर में, रायपुर में यूनिटी के चक्कर में मार खा के वहाँ से रेस्टिकेट कर दिया गया, यहाँ आया शादी में फेल हो गया, अब इतना बड़ा कर्जा है और सारे रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं, तो बिजनेस में फेल हो गया. इतना बड़ा फेलियर है आदमी कि मरने गया और उसमें भी फेल हो गया. दैट हिट मी वेरी बैडली. तब दिमाग में आया कि अभी फॉरगिव फॉरगेट नहीं कर सकते बॉस. एंड देन मेरा फेवरेट कोटेशन तब से आज तक, और आई नो फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ ये रहेगा, दैट द बिगेस्ट रिवेंज इज मैसिव सक्सेस.
So if I will forgive and forget, I will miss the sense of revenge in a good way. So I strongly believe that hatred जो है ना, it's pure, it's the purest form of any emotion. सफ़ेद है वो. आप प्यार में मिलावट कर सकते हैं. आपको कोई समझा देगा तो आपको किसी से प्यार हो जाएगा. आपको कोई और समझा देगा तो people can talk you out of the marriage and love and friendship and what kind of you can start hating your parents because of someone else or your loved ones. But hatred is such a big wide beast, bigger than unicorn, bigger than dragon, bigger than Nav Gunjra. Nav Gunjra, by the way, happens to be our mythical creature. They say dragon is for the Chinese, unicorn is for Greek, Medusa है ना. तो हमारा जो है that is called Nav Gunjra. Nav मतलब 9, gun मतलब qualities और जरा मतलब old. So it is a beast, huge beast, bigger than dinosaur, made of 9 different animals. Hatred is like that, and you need to learn how to tame it and how to ride it. एक बार and it takes patience, it takes a lot of tears, it takes a lot out of you, but once Avatar कितने लोगों ने देखा है ना? Avatar में आपको याद है ये पूरी बातें ऐसी ही चलेगी ना, candidly. Avatar में मैंने देखा था, सभी ने देखा होगा वो, when you get connected with a horse in there or a flying beast, there's this thing ना, चोटी लेके and then they merge it. Metaphorically, we can actually do it with the beast called hate. It just takes time. But once you get connected to it and now you know how to ride it, trust me, it will take you places. It will bring you to Nagpur. So yeah. थैंक यू. सो अब जब नफरत की बात निकली है, सो लेट्स एंटर इनटू द पॉइंट वेयर वी हैव सीन दैट हेट्रेड वहाँ तक लेके गया है लोगों को जहाँ पे बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हुई हैं. एक लड़ाई जो आप भी हमेशा डिस्कस करते हैं और उसके कैरेक्टर्स के बारे में भी आप बताते हैं, वो है महाभारत. हेट्रेड, हेट्रेड एंड हेट्रेड. So what is one character that you can pick from that and give us the relevance in today's time? Actually, everyone, all the characters, you name it and I can connect it to today's time. But before we start discussing so-called Hindu mythology, let us first talk what mythology is. आप में से प्लीज़ हाथ उठाइएगा अगर आप में से किसी ने भी क्रिश्चियन माइथोलॉजी, सिख माइथोलॉजी, जैन माइथोलॉजी, बुद्ध माइथोलॉजी या इस्लामिक माइथोलॉजी शब्द भी सुना हो तो. क्या सुना है? No, not at all. Not even close to. What my question was not कि what is mythology. My question was कि आपने हिंदू माइथोलॉजी वर्ड के अलावा किसी रिलीजन के साथ माइथोलॉजी शायद ही सुना होगा, है ना? It's been very systematically done. Mythology comes from the word called मिथ्या. मिथ्या मतलब fiction, कल्पना. So आप सोचिए कि एक तरफ we are wanting to learn by ourselves and want to teach our next generations to have faith in Ram and Krishna and Shiv and Vishnu, and on the other hand we are saying beta Hindu mythology. This is so contradicting. उस बच्चे को जिसको पता है कि माइथोलॉजी का मतलब ही मिथ्या है, फिक्शन है, उसको आप बाद में बेटा पैर छू के प्रणाम करो या 22 जनवरी को राम के एक स्टैचू में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, it's getting alive. How will you explain and convince somebody whom you and I together are convincing that this is all mithya? This is not satya. So if you have a little faith and belief in your own culture, we need to stop calling it mythology. अगर आप मिथ्या मानते हैं तो mythology बोलिए. अगर आप सत्य मानते हैं तो let's start calling it satyalogy. It will make more sense to the people जिनके कान में बात जाएगा. Think about it. Coming to your question. हम सब ने सुना हुआ है अलग अलग समय में कि बेटा अपने आप को दूसरे की जगह पे रख के भी वी नीड टू अंडरस्टैंड, राइट? कि कई बार क्या होता है कि आप अपनी जगह सही होते हैं, मैं मेरी जगह सही होता हूँ, उसके बाद भी हम दोनों एक दूसरे के लिए गलत हो जाते हैं. हमेशा होता है और हर रिश्ते में होता है. वहीं पे तो टेंशन आता है.
If I know that you are right and I am wrong, then I'll say sorry and it will be over. Fight and conflict starts from where I think I am right and you think you're wrong. You are right, but your right is my wrong and my right is yours. महाभारत हो, रामायण हो, कोई भी किरदार हो, सबकी कहानी सेम है. अगर मैं अर्जुन और पांडव की तरफ खड़ा हो जाऊंगा तो मैं निकाल लूंगा कर्ण में गलतियां. एक बड़ी अच्छी कहानी है कि एक छोटे से गांव में एक शिकारी रहता था और उसके पास एक कुत्ता था. कुत्ते में एक सुपर पावर था कि कुत्ता पानी में डूबता नहीं था, कुत्ता पानी में चलता था. तो बिलायत से उसका एक दोस्त आया, वो लेके गया उसको कैंपिंग कराने. नदी बह रही थी. कुत्ते को बोला टॉमी जाओ मछली पकड़ के लाओ. टॉमी चल के गए, मछली पकड़े, वापस ला के रख दिए. पूरे दिन ये लोग वो मछली बेचारा पकड़ पकड़ के लाता रहा, ये लोग पका पका खाते रहे. बट दिस बिलायत वाला फ्रेंड ही डिड नॉट से एनीथिंग. शाम हो गई, कैंपिंग खत्म करके जा रहे थे. ही कुडंट रेजिस्ट आस्किंग कि व्हाट इज रॉन्ग विद यू, आई शोड यू सच एन इंटरेस्टिंग डॉग, यू डिड नॉट स्पीक इवन वन सिंगल लाइन फॉर हिम. नाउ व्हाट दिस बिलायती गाय डज, ही लुक्स एट द डॉग, ही लुक्स एट द फ्रेंड एंड ही सेज प्रॉब्लम इसमें तैर नहीं सकता ये, ही कांट स्विम. पॉइंट ये है कि जब जिसको गलती निकालनी होगी ना, निकाल लेगा. राम में भी गलती निकाल लेंगे, कृष्ण में भी गलती निकाल लेंगे, द्रौपदी में तो पूरी दुनिया ने निकाला ही हुआ है, सीता की भी गलती रही है ना. तो अगर मैं कर्ण के साइड खड़ा हूँ तो मैं पांडव में गलती निकाल लूँगा. अगर मैं पांडवों के साइड हूँ तो मैं कर्ण में गलती निकाल लूँगा. मैं गंगापुत्र भीष्म की तरफ हूँ तो शकुनी गलत है. लेकिन अगर मेरे को आप शकुनी की तरफ खड़ा कर देंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि शकुनी और उसके पूरे परिवार को एक भीष्म पितामह जेल में डाल दिए थे, क्योंकि उनको पता चला था कि गांधार नरेश की बिटिया गांधारी मांगलिक थी और धृतराष्ट्र से शादी होने के पहले उनकी शादी किसी और से, मतलब कुछ बोलते हैं पेड़ से करा दिया था, कुछ बोलते हैं बकरे से करा दिया था, कुछ बोलते हैं घड़े से करा दिया था, किसी से भी करा दिया था, करा तो दिया था. तो उस गुस्से में भीष्म पितामह इनवाइटेड ऑल ऑफ देम. उस समय अतिथि देवो भव ये बात का कॉन्सेप्ट है. पहले ऐसा होता था कि तुम मेरे द्वारे आए हो, मैं जो दूंगा खाना पड़ेगा, यही होता था. चॉइस नहीं होती थी, अरे ये रहा मेन्यू बताइए क्या खाएंगे, नहीं, यही बना है यही खाना पड़ेगा. और जो दिया जाएगा अतिथि को खाना पड़ता था. उसके पूरे कुनबे को, गांधारी के पूरे कुनबे को, इंक्लूडिंग गांधार नरेश एंड इंक्लूडिंग शकुनी, सबको जेल में भरा गया. और उस पूरे कुनबे को हर दिन एक मुट्ठी राइस दिया जाता था, पकाओ और खा लो. आप सोचिए इतने लोगों के बीच में एक मुट्ठी चावल में क्या होगा. एक एक करके लोग मरने लग गए. नाउ दे न्यू कि अगर एक एक मुट्ठी चावल में एक एक दाना चावल खाएंगे तो सारे मर जाएंगे. सो कलेक्टिवली दे डिसाइडेड कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन का जो किंग है वो शकुनी है, उसको जीवित रखेंगे. वो पूरा एक मुट्ठी चावल बैठ के शकुनी खाते थे और बाकी सब एक एक करके उनके नज़र के सामने जाते थे. और जब आखिरी में सिर्फ गांधार नरेश और शकुनी दो लोग बचे, तो अपनी बची खुची शक्ति के साथ गांधार नरेश ने बोला शकुनी को पास आइए. पास आया. वो अय्याश तो था शकुनी पहले भी. बोले मैं तुमको एक गिफ्ट देना चाहता हूँ, पास आओ. जब वो पास आया, जितनी शक्ति बची थी पूरी लगा के शकुनी के घुटने पे लात मार दिया. शकुनी का घुटना टूट गया. बोले ये क्या किया आपने. बोले तुम इतने बड़े अय्याश हो कि जब यहाँ से निकलोगे ना 4 दिन में भूल जाओगे कि यहाँ क्या हुआ था. ये जो बीमारी है ना भूल जाने की, वही है फॉरगिव एंड फॉरगेट. तो हम लोगों को ना पढ़ते रहना चाहिए. तो उन्होंने बोला कि तुम जीवन भर लंगड़ाते रहोगे, हर कदम में तुमको याद आएगा कि तुम्हारा पैर मैंने क्यों तोड़ा था और यहाँ क्या हुआ था. सो योर ओनली पर्पस इज टू रूइन दिस कुरुवंश, खत्म कर दो सबको. और उसके बाद उन्होंने बोला था पैर तोड़ा हूँ तो एक सही में गिफ्ट भी दूंगा. तो भगवान भी ऐसे ही करते हैं कि व्हेन गॉड्स गिव यू टफ टाइम्स दे गिव यू द पावर टू बाउंस बैक. रबर के बॉल हैं हम लोग, जितनी ज़ोर से ज़मीन में पटका जाएगा उतने ऊपर जाएंगे, अगर इफ़ यू अंडरस्टैंड दैट द ग्रेटेस्ट रिवेंज इज मैसिव सक्सेस ओनली देन. तो मेरी हड्डियों से 2 पासा बनाना, फेंकोगे जो बोलोगे वो आएगा. और फिर वो बाकी का पूरा खेल हुआ था जिस पे मैं नहीं जा रहा हूँ, वो द्रौपदी, चीरहरण एंड ऑल ऑफ दैट, यू नो. तो अब अगर आप इस कहानी को मानेंगे, आप बोलेंगे ये बोल रहा है तो सही होगा, तो मैं तो शकुनी ने जो किया उसको भी जस्टिफाई कर सकता हूँ. So there's always the second side that we need to see. The grass is no more greener on the other side. एक कहावत है, मगर एक दूसरी कहावत ये भी है कि जब यहाँ रात होगी तो कहीं और सवेरा भी होगा, है ना.
कहावतों में हम लोग बड़े फंसे हुए हैं। एक बोलते बोलते एक और बात याद आ गई कि मैं सोया हुआ था तो मेरी माँ ने मुझे लात मार के उठाया, बोले उठ, आलस्य हमारा शत्रु है। सुना है ना हम लोग ने, आलस्य हमारा शत्रु है। मैं उठा, नहा धो के रेडी हुआ, काम पे निकला, एक मंदिर क्रॉस कर रहा था, मंदिर की दीवार पे लिखा हुआ था कि शत्रु को भी गले लगाना चाहिए। वापस गुड नाइट। तो एक चना भार नहीं फोड़ सकता, लेकिन एक मछली सारे तालाब को गंदा कर सकती है। इसका मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये दोनों में से कोई एक गलत है। ये अलग अलग जगह पे, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, अलग अलग रेफरेंसेस में, अलग अलग संदर्भ में बात की जाती है, यही समझाने के लिए कि ये दोनों एक ही जगह सही हो सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ रात है तो कहीं और सवेरा हो रहा होगा। That's it. सो जैसे आपने कहा कि इट इज़ अबाउट कि हम कैसे जज कर रहे हैं या कौन कैसे जज कर रहा है. सो देयर इज़ वन कैरेक्टर इन महाभारता हु इज़ अ वेरी गुड जज, हु इज़ अ वेरी गुड पॉलिटिशियन, who is a scholar and who knows what the exact manipulation is required for right or wrong. वो है श्री कृष्णा जी. उनकी एक कहानी आप हमेशा बताते हैं which is very relevant in today's world, जो उन्होंने बार्बरिक के साथ में की थे. So if you can just tell us about the barbaric वाला इंसिडेंस और उसका रिलेवेंस आज के लीडरशिप और आज के जो डिसीजन मेकिंग एरा है उसके हिसाब से उसका रिलेवेंस. आप मीडिया में भी रही हैं क्या? हाँ, क्यों फंसाने की कोशिश कर रही हैं? खैर, मजाक था. मैंने कहीं एक बार बोल दिया था लोगों को, मैं बहुत सारी ऐसी बातें बोल देता हूँ जो कईयों को बहुत अच्छी लगती है और कईयों को बहुत बुरी, क्योंकि मुझे ये सब झेलते समय एक बात समझ में आ गई थी कि ना गांधी से हर कोई प्यार करता है, ना हिटलर से हर कोई नफरत. यू कैन नॉट कन्विंस एवरीबडी. इफ़ यू विल ट्राई टू कीप कन्विंसिंग एवरीबडी, यू विल बी डूम्ड. तो मुझे अब ज़्यादा फ़र्क, ऐसा नहीं कि नहीं पड़ता है, पर अब ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन मेरी कथनी को कैसे लेता है और कौन मेरे बारे में क्या सोचता है. तो जैसे मैंने एक बार कहीं पे कह दिया था, किसी ने पूछा था धर्म परिवर्तन बहुत तेज़ी से हो रहा है, अक्षत आपको क्या कहना है? तो मेरे मन में आया तो मैंने बोल दिया कि हम सभी को चादर और फादर से बचने की ज़रूरत है. जिनको समझ में आया जिनको समझ में आया उन्होंने ताली बजा दी, जिनको समझ में नहीं आया वो अभी मुझे ढूंढ रहे हैं ताली बजाने के लिए. जैसे कहीं इसी तरीके का कोई और सवाल आया था तो मैंने ये कह दिया था कि इफ़ यू आर नॉट ऑन दी टेबल देन यू विल बी इन दी मेन्यू समडे. कि अपनी जगह के लिए नहीं लड़ोगे तो खा जाएंगे बाकी. और जितने ऐसे सिविलाइजेशन रहे हैं जो खुद के लिए नहीं लड़े हैं वो खप गए, है ना. हम बहुत सारी चीज़ें सिस्टमैटिकली हुई हैं. मैं बर्बरिक पे वापस आऊँगा, पर दिमाग है, सुनता है तो कहीं कहीं जाता है. देखिए, आपके और मेरे साथ ना बहुत सारे खेल हो रहे हैं और अरसे से हो रहे हैं. शुरू कहीं से भी कर सकते हैं, पर गांधी जी से करते हैं. नहीं, राहुल गांधी जी से नहीं. 4 लोग एक कमरे के अंदर बैठे और डिसाइड किए कि हम चारों में आप सबसे ज़्यादा वरिष्ठ हैं, आप आज से देश के बाप हैं. बाप जी को भी अच्छा लगा. उन्होंने बोला तुम मेरे अनुज हो, तुमने मुझे बाप बनाया है, मैं तुमको चाचा बनाता हूँ, है ना. देश का बाप नहीं होता है, देश की सिर्फ संतानें होती हैं. इसीलिए भारत माँ का कोई चेहरा नहीं है. इट इज़ एन इमोशन, इट इज़ अ फीलिंग, नॉट अ फेस. क्योंकि अगर मैं अहिल्याबाई को, झांसी की रानी को, इंदिरा गांधी को, किसी को भी अपने मन में चेहरा दे के बोल दूंगा कि शी इज़ द मदर ऑफ द नेशन, तो जिस दिन वो स्वर्ग सिधार जाएंगी, जिस दिन उनका देहांत हो जाएगा, उस दिन मेरा पूरा देश अनाथ हो जाएगा. समझिए इस बात को. इसीलिए हम इस तरीके की एंटिटीज़ को चेहरा नहीं देते हैं. तो बापू चले गए तो फिर हम लोग तो सब कैसे होगा. तो एक बापू बने, एक चचा बने, तो बाकी भी बनाओ ना. फिर नागपुर में मेरी बुआ क्यों रह रही है? देश में भी एक चेहरा हो जो बुआ हो, फुफ्फड़ हो, काका हो, बड़े पापा हो. ऐसे नहीं होता है. अब यही महाशय, और मैंने बोला कि आप वी कैन एग्री टू डिसएग्री, इट इज़ एब्सोल्युटली ओके. मगर इन्हीं महानुभव ने आपको 2-3 चीज़ें समझाई. उन्होंने बोला कि अहिंसा सत्य धर्म,
अहिंसा परमो धर्मा बोला। उन्होंने ये भी बोला कि एक गाल पे थप्पड़ पड़े तो दूसरा बढ़ा दो। और बाद में हमको बताया गया अपने क्लासरूम्स में कि ये अहिंसा के कारण हमको आज़ादी मिल गई, और सारे जो अंग्रेज आए थे ना वो हमारे गाल में थप्पड़ मार मार के थक गए। बोले कितने प्यारे लोग हैं, हम मारते जा रहे हैं, ये खाते जा रहे हैं। तो सुभाष चंद्र बोस क्या कर रहे थे? तो एक आदमी को आप नहीं दे सकते हो पूरी बात का क्रेडिट, गलत है। और अगर फिर भी देना है तो मैंने कह दिया था कि हिटलर को दे दो भारत की आज़ादी का क्रेडिट, क्योंकि हिटलर जो अंग्रेज़ों के साथ कर रहा था, विश्व युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो चल रहा था, उसके कारण ब्रिटिशर्स इतने कमज़ोर हो गए थे कि उनको मालूम था कि अब इन लोग पे इनको और समय थप्पड़ मार के रोक नहीं पाएंगे। और उसी समय सुभाष चंद्र बोस हिटलर से मिलके एक आर्मी लेके आ रहे थे इस तरफ। सो वो सब, तो अगर आपको एक को देना है तो फिर बोलते हैं ना फादर ऑफ द नेशन इज हिटलर, तब सब अभी सबका खून सूख जाएगा। तो ये समझाते समझाते उन्होंने समझाया कि अहिंसा मतलब गलत है। आपको और मुझे पता ही नहीं चला कि सबकॉन्शियसली हम अपने सारे देवी देवताओं को नकार दे रहे हैं, क्योंकि मेरी तो हर देवी देवता के हाथ में अस्त्र शस्त्र है। तो अगर हथियार उठाना गलत है तो आपको और मुझे पता भी नहीं चला कि हमने मान लिया कि हमारे सारे देवी देवता गलत हैं। ऐसा नहीं होता। तो इसी तरीके की बातें मैं बोल के फंस जाता हूं। आ जाते हैं बर्बरीक पे। कहीं पे कुछ बात चल रही थी तो मैंने कहा कि बर्बरीक, जिनको ना मालूम हो, 1 मिनट में बर्बरीक की कहानी सुना देता हूँ। ये था कि बर्बरीक बहुत शक्तिशाली था और किसी को पता नहीं था वो किसकी तरफ से लड़ेगा। तो कृष्ण उनके पास गए और बोले बताइए आप किसकी तरफ से लड़ेंगे, कौरवों की तरफ से या पांडवों की तरफ से? बर्बरीक मुस्कुराया, बोला जो कमज़ोर होगा मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा। जब ये कमज़ोर होंगे तो इधर से लड़ूंगा, फिर इनके साइड से लड़ के उनको कमज़ोर कर दूंगा तो उधर चला जाऊंगा, फिर उधर से लड़ूंगा, फिर ये कमज़ोर होंगे तो इधर आ जाऊंगा। कृष्ण थोड़ी देर कुछ सोचे, बर्बरीक का गला काटे, पेड़ के ऊपर टांग दिए, बोले कुछ मत करो तुम बस देखो जो हो रहा है। वापस आए तो पांडव बोले ये हमारा साथ देता तो कितने शक्तिशाली हो जाते हम, ऐसी हमारी तादाद कम है, ये क्या कर दिया आपने? तो कृष्ण ने बोला था कि ये बर्बरीक जो है ना, ऐसे लोग समाज के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है। बिन पेंदी के लोटे, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। आज के शास्त्रों में उन्हें ही सेक्युलर कहा गया है। तो इट डजेंट मैटर वेदर आई एम राइट और रॉन्ग, इट डजेंट मैटर वेदर यू आर अ लेफ्टिस्ट और अ राइटिस्ट, एटलीस्ट हैव अ स्पाइन टू चूज अ साइड, जस्ट चूज अ साइड। बहुत सारे जो शब्दों की बात कर रहे थे हम, बहुत सारे शब्दों में खेल है। आप में से यहाँ कितने लोग ऐसे हैं जो औरत शब्द सुने हैं या कह चुके हैं? औरत, डे टू डे वर्ड। प्लीज़ अपने अपने मोबाइल में, हालांकि सारे अडल्ट हैं इसलिए मैं बोल देता हूँ, औरत शब्द का मतलब होता है द वजाइना ऑफ अ वुमन। गूगल इट, सर्च इट, दैट इज ऑल दैट वर्ड मीन्स, दैट इज ऑल। क्या हमारी संस्कृति में महिलाओं की सिर्फ इतनी जगह है? कभी नहीं रही। एक शब्द आया मैडम, जिसका मतलब होता है देह का व्यापार करने वाले। जो देह का व्यापार करके जो महिलाएं घर चलाती थी उनको फ्रांस में मैडम कहते थे। उनके लिए इज्जतदार शब्द होता था मेडमोजेल, मैडम नहीं होता था। वो प्रचलित हुआ, पूरे विश्व में घूम के आ गया, यहाँ पे हो गया मैडम। और आम बोलचाल में हम हिंदी के महिला और सारे अच्छे शब्द उठा के चिपका दिया हमने औरत। ये औरतें ऐसा करती हैं, औरतों के कारण ही कलेश होता है, औरतों को ड्राइविंग सीट पे नहीं बैठाना चाहिए, इधर का इंडिकेटर देती हैं उधर घुस जाती। सारे मजाक कर चुके हैं हम इस शब्द के साथ औरत। जब वो फॉरेन के लोग ना हमको मैडम सिखाने में लगे हुए थे और कोई और कल्चर था जो महिलाओं को सिर्फ उसके एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के नाम से पुकार रहा था, तब आपके और मेरे कल्चर में, सनातन में, हिंदुत्व में, भारत में महिलाओं के लिए जो शब्द था वो वही था जो आज भी केबीसी में अमिताभ बच्चन बोलते हैं, देवी जी आप धन्य हैं। लेकिन आज अगर आप मुझे चेहरे से नहीं जानते हैं, इस तरीके का परिधान पहन के, कुर्ता पजामा पहन के अगर मैं आपको कभी मॉल में टकरा गया और आप एक मॉल के किसी फ्लोर के एस्केलेटर पे खड़े होकर ये सोच रही हैं कि इसी लेवल पे एक बार और शॉपिंग, विंडो शॉपिंग कर लूँ या नेक्स्ट लेवल पे चली जाऊँ, और पीछे से मैं आके अगर बोल दूंगा ना कि एक्सक्यूज़ मी देवी जी, तो सबसे पहले आप ही लोग ऐसे देखेंगे और बोलेंगे गंवार, देवी जी बोल रहा है।
क्यों गंवार? उर्दू बोलूँगा तो शायर हो जाऊँगा, अंग्रेज़ी बोलूँगा तो इंटेलेक्ट हो जाऊँगा, हिंदी बोलूँगा तो गंवार हो जाऊँगा। जबकि मतलब मेरी गलती है कि मैं आपको मान दे रहा हूँ, मेरी गलती हो रही है कि मैं आपको औरत नहीं कह रहा हूँ। ये जानने के बाद कोई इग्नोरेंस में भी आपको ये शब्द बोलेगा ना, तो हर महिला कब के भौं तन जाएंगे, उंगली उठ जाएगी, बोलेगी अगली बार बोलोगे ना मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। लेकिन नहीं पता है तो चल रहा है। मोदी जी आए हैं, विश्व गुरु बनाएंगे हम सब मिलके भारत को, लेकिन स्कूल में सर बोलना नहीं शुरू कर पा रहे। गुरु जी नहीं, अब जाइए बोल के देखिए गुरु जी, सबसे पहले गुरु जी को ही बुरा लगेगा। सही बोल रहा हूं मैं कि मतलब मजाक उड़ा रहे हो, गेट आउट ऑफ द क्लास। वो बेचारा सही करना है सोचा, अक्षत गुप्ता से इन्फ्लुएंस हो गया तो लग गई उसकी, क्या मतलब हुआ, है ना। तो ये शब्दों का बहुत खेल है। जैसे अभी मैंने कहीं पे सुना कि एक शब्द है हवस का पुजारी, सबने सुना है। भाई हवस तुम्हारा शब्द है, मेरे पुजारी को क्यों जोड़ रहे हो? हवस का मौलाना बोलो। तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मेरे को क्यों रगड़ रहे हो उसमें? मैं देख लूंगा मेरे पुजारी के साथ मेरे को कैसे डील करना है। गुनाहों का देवता, क्यों देवता? भाई तुमने ही शब्द बनाया है तो उसके साथ अल्लाह बोलो ना। अगर आपको कुछ करना है तो अपने के साथ करो। मैं आपके बारे में बोलता हूं तो आपको मिर्ची लग जाती है, आप मेरे बारे में मत बोलो, मैं आपके बारे में नहीं बोलूंगा। मेरा तो रंग ही भगवा है ना। क्या होता है भगवा? कौन कौन सा रंग मिला के बनता है भगवा? लाल और पीला। लाल है खतरे का प्रतीक, खून का प्रतीक। पीला है चंदन का प्रतीक, ठंडक का प्रतीक। ये मैं अगर भगवा पहन के आऊँ तो ये मेरा निर्णय थोड़ी ना है कि आपको मेरे भगवा में कौन सा रंग दिखेगा। आप मेरे साथ जैसे पेश आएंगे आपको वही रंग दिखेगा और दिखना चाहिए। आप मेरे दरवाजे प्यार से आएंगे तो हमारे यूपी बिहार साइड में जब भी पेपर वाला हो, केबल वाला हो, पार्सल लेके आना हो या अमेजोन वाले कोई भी हो, एक कटोरी में एक मीठा होता है, अगर मीठा नहीं होता तो गुड़ रखते हैं और साथ में पानी का एक गिलास देते हैं, क्योंकि कुछ सर्विस दे रहा है ना। तो आप मेरे पास प्यार से आएंगे तो आपको मेरे भगवे में चंदन और पीले रंग की खुशबू आएगी। आप मेरे से बदतमीजी से मिलेंगे, तैश से मिलेंगे तो मेरे में लाल दिखेगा और दिखना चाहिए। नहीं दिख रहा है ना तो बर्बरीक हैं फिर हम कि अरे कोई बात नहीं भाईजान, अरे भाईजान, भाभी जान। वो बिछिया और पायल सीता गिराते गिराते पहुंची थी लंका, है ना। ये कल्चर है हमारा। तो जब लक्ष्मण के हाथ में दिया गया तो वो बिछिया और पायल देख के बोले तो मेरी माँ का है, क्योंकि लक्ष्मण ने सीता का मुंह ही नहीं देखा था कभी। वो उनके पैर से और उनकी पायल बिछिया और उनकी पैर की उंगलियों से पहचानते थे कि ये मेरी माँ है। ये था कल्चर। कब हो गई भाभी माँ से जान? ये सब शब्दों के खेल है। हवस का पुजारी, ये जो सर का फुल फॉर्म होता है स्लेव आई रिमेन। मैडम का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ। अगर हम देवी जी बोलना शुरू कर लें, मुझे मालूम है यहाँ आप लोग बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, उसका शुक्रिया नहीं कहूँगा। ओह शुक्रिया से याद आया, एक शब्द है अल्लाह का शुक्र है। सुने हम लोग? हमको ना ये स्टेटमेंट कान में करेक्ट लगता है कि अच्छा साउंड्स गुड। हमने अल्लाह हटाया, भगवान चिपका दिया, हम ही ने चिपका दिया। भगवान कैसे हैं आप सब? ठीक है, भगवान का शुक्र है। अरे भगवान के कभी शुक्र नहीं थे यार। शुक्राचार्य को भगवान ने लतेड़ दिया था, वो जाके असुरों के गुरु बने थे। भगवानों के, देवताओं के जो गुरु हैं उनका नाम बृहस्पति है। कभी भगवानों का शुक्र नहीं रहा यार, नहीं पता। लगे हुए हम लोग, ऊपर वाला सब देख रहा है। मेरा भगवान ऊपर रहता ही नहीं है, मेरे बीच में रहता है। मैं चींटी को आटा खिलाता हूँ, मैं गाय को माँ मानता हूँ, मैं हाथी की पूजा करता हूँ। मैं अपने हर भगवान में कोई ना कोई जानवर क्यों जोड़ के रखा हूँ? पागल हूँ मैं? हाथी, आप सोचिए पुराने ट्राइबल लोग और गांव के वासी, सबसे आसान शिकार कौन सा जानवर है? हाथी। छुप सकता नहीं बेचारा, दौड़ सकता नहीं बेचारा, और एक हाथी मारो और पूरा कबीला ना कम से कम 15 दिन बैठ के खाएगा। रोज रोज जाना ही नहीं पड़ेगा शिकार करने। करेक्ट है ना? फिर हम खरगोश और हिरन के पीछे क्यों दौड़ रहे थे? क्योंकि जो जितना वल्नरेबल था ना उसको उतने बड़े भगवान से जोड़ दिया हमने हाथी का चेहरा ही दे मारा गणेश को कि अब हाथी को मारोगे सिर्फ गणेश जी थोड़े ना गुस्सा होंगे, पप्पा भी गुस्सा होंगे उनके, मम्मी भी गुस्सा होंगी उनकी। हाथी फल फूल रहे।
और लोग हमको इलॉजिकल बोल देते हैं। इलॉजिकल हो तुम लोग। हम लोग इतने लॉजिकल लोग हैं कि हमारे में जब पहली बार सोचा होगा ना किसी ने कि यार ये जो गॉड ऑलमाइटी हैं, इनका एक शब्द, इनको क्या बुलाएं, क्योंकि हमको अंग्रेजी नहीं आती थी ना उस समय, तो गॉड ऑलमाइटी तो थे नहीं, वो तो बाद में हम जी फॉर गॉड सीखें। तो जिसने सोचा होगा तो उसने सोचा कि उसको भगवान कहेंगे। क्यों भगवान ही क्यों कहेंगे? लगवान, सगवान, नगवान, भगवान क्यों नहीं कहेंगे? एग्जैक्टली क्योंकि भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, व में आ की मात्रा अग्नि और न से नीर मतलब पानी। तो जो शक्ति इन पांचों को साध ले ना, वो है भगवान। अभी हम लोग को एक और नया शौक चढ़ा है पिछले 5-8 साल से। मैं बोर तो नहीं कर रहा हूं आपको? नहीं, सवाल एक्चुअली वो सोच रही होगी ना, अबे बाकी के भी तो सवाल हैं, बस कर। अभी 2-4-5 साल से और शायद 10 साल से, मैंने काउंट नहीं किया, एक नई बीमारी पड़ी है हम लोगों के बीच में, उसको कहते हैं डैडीज प्रिंसेस। आई एम कमिंग टू दैट। पापा की परी, डैडीज प्रिंसेस, सुना है ना? मैं खड़े हो सकता हूँ, ईमानदारी से 5 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और इस शब्द को विजुअलाइज कीजिए, प्रिंसेस। मैं आपको बताता हूँ आपको क्या दिख रहा होगा। मोर और लेस सेम टू सेम नहीं दिखेगा, क्योंकि सबके दिमाग में प्रिंसेस का चेहरा अलग होगा, लेकिन ओवरऑल उसकी जो वेशभूषा दिखेगी वो आपको ये दिखेगी, बेबी पिंक कलर की के फ्रॉक में एक बहुत ही फ्रजाइल सी, बहुत ही नाजुक सी एक लड़की जो पंपकिन शेप के एक चैरियट से, एक रथ से उतरने की कोशिश कर रही है। बस एक ही सीढ़ी उतरना उसको सिर्फ, लेकिन वो कोशिश कर रही है, उतर नहीं रही है, वो ऐसे खड़ी है। ओ सॉरी, मैं बताना भूल गया, उसने टियारा भी लगाया हुआ है और उसका दूसरा हाथ ऐसा है, और लाल रंग के यूनिफॉर्म में एक बांका नौजवान एक घुटने पे बैठा हुआ है। पता नहीं क्यों यहाँ उसके रस्सी लगी हुई है, एक यूनिफॉर्म टाइप है ना, और वो बैठा हुआ है कि आओ प्रिय, मैं तुमको ये एक सीढ़ी उतरने में मदद कर दूं, क्योंकि वो तो प्रिंसेस है ना, नहीं उतर पा रही है। आप 5 सेकंड के लिए और आंख बंद कीजिए और मैं कहता हूँ राजकुमारी। नहीं आएगा, ये वाला विजुअल नहीं आएगा दिमाग में। झांसी की रानी दिखेगी, जबकि वो रानी थी, राजकुमारी थी भी नहीं। ये करते हैं शब्द। तो वैसी बर्बरी सेक्युलर थे, तो सबसे पहले वही टंगे, बाकी तो बाद में गए। तो इन शब्दों के साथ बहुत सारे खेल चल रहे हैं जो आपको और मुझे समझना पड़ेगा विद टाइम, स्टार्टिंग फ्रॉम द वर्ड माइथोलॉजी टू ऑल ऑफ दिस। आई कैन गो ऑन एंड ऑन, पर बाद में ये लड़ेगी मेरे से। नहीं, आई डू अंडरस्टैंड, वी हैव बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने के लिए, बट प्रोसीडिंग टूवर्ड्स कंक्लूजन, ये सारी जब चीज़ें हम डिस्कस करते हैं, एक साइड है, इवन हिंदू हो या हिंदुस्तान की भी अगर बात करें, तो एक साइड है जिसको हम डर से देखते हैं, जिनके ऊपर आपने काफ़ी रिसर्च करी, अघोरी, नागा साधुस, इन सारे लोगों का हमारे सिविलाइजेशन में क्या इम्पोर्टेंस है? यू हैव रिटन अ बुक ऑन इट, सो what have you observed and how you feel that they are also an important and integral part of the civilization? मैं मिला हूँ नागा साधुओं से, अघोरियों से, उनसे मिलके बहुत सारी चीज़ समझ में आई, लेकिन एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझ में आई, आप में से बहुत ज़्यादा लोग होंगे, सबसे ज़्यादा होंगे शायद, जो शिव की पूजा करते होंगे या शिव के भक्त होंगे, शिव को मानते होंगे। बिल्कुल मानिए, लेकिन ना शिव के वो भोला भंडारी वाले रूप को छोड़ना पड़ेगा, रौद्र रूप को अपनाना पड़ेगा। कीजिए, शिव की पूजा कीजिए, लेकिन भोले वाले शिव को अभी बैक सीट में बैठाई, बोले आप भोले हैं, बैठिए आराम से, अभी आपकी ज़रूरत बाद में पड़ेगी या पहले पड़ चुकी है। तो नागा साधु मतलब ऑन रिकॉर्ड्स 4 लाख से ज़्यादा नागा साधु हैं। कौन है नागा साधु? वो आपके और मेरे धर्म के रक्षक हैं। हम लोग कभी एयरफोर्स के पायलट को देखते हैं तो डरते हैं क्या? या कभी नेवी के
सील को देखते हैं या कभी आर्मी के जवान को देखते हैं, वी फील रिस्पेक्ट ना फॉर देम। मन होता है ना कि अगर एक ग्रीन कलर की गाड़ी में वो सब भर के जा रहे हैं तो ऐसे करें ऐसे करें। आपके और मेरे आने से पहले और आपके और मेरे चले जाने के बाद इस पृथ्वी से नागा साधुओं का अस्तित्व रहेगा। आदि गुरु शंकराचार्य ने उनको बनाया इसलिए था क्योंकि उनको समझ में आ गया था कि आने वाले समय ना ऐसे दो लोग बैठ के शास्त्रार्थ नहीं करेंगे, शास्त्रों के साथ शस्त्रों की जरूरत पड़ेगी और बहुत जोर से पड़ेगी। तो इसलिए नागा साधुओं के क्लैन का सृजन किया गया था, उनको बनाया गया था और उनको एक ही काम दिया गया था कि तुम धर्म के रक्षक हो। पड़े रहते हैं इधर उधर, कुछ नहीं चाहिए उनको, लेकिन जब जब धर्म पे विपदा आती है वो कहीं ना कहीं से आ जाते हैं। 12 साल में एक बार तो आते ही हैं, लेकिन उसके अलावा भी दैट इज़ दी सोल पर्पस ऑफ देयर्स। तो जब हम अपने आर्मी और नेवी वालों को देख के वी फील सो मच ऑफ रिस्पेक्ट एंड, तो अगली बार कभी नागा साधु को देखेंगे तो वो 7 घरों से ही मांग सकते हैं। अगर उनको 7 घरों में नहीं मिलता है तो उस दिन भूखे सोते हैं। तो जो दे पाए दीजिए, दे आर नॉट मटेरियलिस्टिक, अपना खुद का पिंड दान कर चुके होते हैं तो मृत्यु से डर नहीं है। आपसे उनको कुछ चाहिए नहीं। तो अगर देखिए मैं अभी यहाँ बैठा हूँ ना, मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग मेरे से इम्प्रेस हो जाएं। मैं चाहता हूँ कि अरे यार इसको सुन के मज़ा आया, इंस्टाग्राम में ढूंढो इसको, चलो फॉलो करते हैं। अच्छा ये वाली कौन सी किताब है, चलो खरीदते हैं। नागा साधु को आपसे कुछ नहीं चाहिए, इसलिए वो आपको लोअर नहीं करता, लोलो पच्चो नहीं करेगा। वो लोग दूर रहना चाहते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि क्या है ना, संक्रमित होते हैं ना हम लोग, हम सब एक दूसरे से संक्रमित होते हैं ऑल द टाइम। उनको नहीं होना है, उनको नहीं देखना है कि अरे यार फलाने का बेबी पिंक कलर का शर्ट बहुत अच्छा लग रहा है, मैं तो नहीं पहन सकता, मैं तो भगवा चुन चुका हूँ। उनको उस फेर में नहीं फंसना है, तो वो आपके बीच में होते ही नहीं। नागपुर की सड़कों पे थोड़ी ना दिखेंगे। उनसे मिलने के लिए हमको जाना पड़ेगा, हमसे मिलने वो नहीं आते। तो बहुत सारी चीज़ें नागा साधुओं से सीखने की, पर एक चीज़ जो इतने शॉर्ट नोटिस में सीख सकते हैं वो ये कि अगली बार जब सामने आए तो आदर से मिलिएगा, अगर कभी आए तो, क्योंकि वो और उनके जैसे सारे खड़े हैं हमारे लिए, और हमसे थैंक यू भी नहीं चाहिए उनको, ऐसा है। सो एक आखिरी कहानी जो यू फील कि इट मस्ट बी शेयर्ड। एक तो जो हमारा डिस्कशन फ़ोन पे एक बार हुआ था, जो मुझे आपका वो बात बहुत पसंद आई थी कि अगर किसी के पैर छूना है तो दिल में है तो ही पैर छूइए, अदरवाइज डोंट डू इट। इसी तरह से कोई एक ऐसी चीज़ जो आपको लगता है यू फॉलो इट एंड you should keep in front of everybody that this is something that one should do. This is what the culture told us. This is what the civilization can be added to it, like a good thing to be added to the civilization with this. And this is something which everybody should think on it. कितना समय बचा है हमारे पास? 10 मिनट। ठीक है। मैंने अपना परिचय दिया था, मैंने कहा था मेरा नाम उर्मिला पुत्र अक्षत गुप्ता है। बाद में मैंने कहा था आई एम अ फुल टाइम हाउस हस्बैंड। आप सब मुस्कुराए थे, मेरा पर्पस था कि आप लोग मुस्कुराएं, लेकिन उस पूरी बात में उतनी सत्यता भी है। मैंने आपको बताया कि मेरे साथ कुछ चीज़ें गलत हो गई थी, पर आज के समय में मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी एक समकक्ष है, मेरी फिर से शादी हुई, मैं खुश हूँ। और दूसरी बार सारी गलतियाँ करके जब मैं बालकनी में खड़ा था तो मेरे दिमाग में 2 लाइन आई थी कि जहाँ से चले थे फिर वहीं आकर ठहरे हैं, एक उम्र लग गई समझते कि दुनिया गोल है। तो हम सब भी कहीं से निकले थे देवी जी वाले समय से और पहुंच गए हैं अब की स्थिति में, जिस पे हम थोड़ी देर चर्चा कर चुके हैं। मेरे को आपको 2-3 छोटी बड़ी चीज़ें दिखानी है जो मुझे लगता है कि अगर यहाँ से कुछ लेके जाना है तो ये लेके जाइएगा। अभी हम प्रिंसेस और राजकुमारी पे बात कर रहे थे। अगर हम लोग सब देवी जी बोलना शुरू कर दें, आई नो इट साउंड्स अ लिटिल ऑकवर्ड, बट वी आर द पीपल हु मेड इट ऑकवर्ड। डोंट गिव अ शिट व्हाट दैट देवी जी इज थिंकिंग अबाउट यू। जिस दिन उसको समझ में आएगा ना, उस दिन वो याद करेगी कि यार वो एस्केलेटर पे एक बंदा मिला था अनजान, वो अदब से पेश आ रहा था, क्योंकि औरत शब्द अच्छा नहीं है। जब आएगा तब आएगा, पर आपको तो आ गया ना, उसको मालूम होना। अपन तो बंद कर सकते हैं। हमने रामायण की बात की है, राम जी, कृष्ण जी। मैं ना आपको एक अलग तरीके से रामायण दिखाना चाहता हूँ 5-7 मिनट में, ठीक है? क्योंकि अगर आप देवी जी बोलना सीख जाएंगे हम सब, तो फिर मैं बहुत सारा ट्रैवल करता हूँ फ्लाइट में। बहुत खूबसूरत एयर होस्टेसेस होती हैं अमूमन। फ्लाइट में एयर होस्टेस हो, चाहे किसी रेस्टोरेंट में खाना खिलाने वाली कोई महिला हो, अगर हम
एक महिला को देख के देवी जी सोचना शुरू, बोलेंगे तो सोचना अपने आप सीख जाएंगे। अगर देवी जी बोलना शुरू करेंगे ना तो वो एयर होस्टेस और वो जो खाना खिला रही होगी किसी रेस्टोरेंट होटल में ना, उसके बारे में बाहर जाके अपने दोस्त को ये नहीं बोलेंगे क्या माल थी यार, नहीं बोलेंगे। उसमें अन्नपूर्णा दिखेगी क्योंकि वो सर्व कर रही है। मैं मुंबई में रहता हूँ, मैं 9 फिल्में हैं मेरे पास, सारी एक्ट्रेसेस से मुलाकात होती है और भी बहुत सारे लोगों से मुलाकात होती है जो जिनका काम है शोबिज़ का, बहुत छोटे छोटे कपड़े पहन के मिलती हैं क्योंकि उनका काम है। छोटे से छोटा स्कर्ट पहन के भी अगर कोई अपने काम पे जा रहा होगा ना तो रास्ते पे देख के ना उसमें लक्ष्मी दिखेगी, कमाई कर रही है ना। और कोई भी कुछ सिखाएगा ना, चाहे रास्ते चलते ही सिखाएगा। वो ट्रैफिक पुलिस में भी कई बार महिलाएं खड़ी रहती है ना, वो भी सिखा रही है कि रुको, इधर से जाओ, ये मत करो, सरस्वती दिखेगी। और उसके बावजूद अगर तुम लोगों की या मेरी नज़र ख़राब है तो उन्हीं महिलाओं को जब हम गलत निगाह से देखेंगे ना, हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस देवी जी बोलना चालू करो, उसी में काली और दुर्गा दिख जाएंगी कि इधर आ बताती हूँ। समझ रहे? तो सीता, आपने रामायण 10 बार सुना होगा, यहाँ बैठी महिलाओं से खास तौर पे सवाल है कि ये जो सीता, मतलब ये जो मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ, ये आप लोग सोचिए कि मेरे दिमाग में क्यों आई, ये कहीं पढ़ा नहीं है, ये खुद बनाया है, सोचा है, तो खुद क्यों नहीं सोच रहे हैं? हमको आज तक बताया है कि रामचरितमानस, रामायण, मैं आपको सीतायन सुनाता हूँ। सच्ची में जाके सोचिएगा कि हाँ यार ऐसा भी तो हो सकता था, क्योंकि हम थे तो महिला प्रधान देश, इस देश में स्वयंवर होता था, स्वयं वधू कभी नहीं हुआ। और अब हम बोलते हैं मेरा नाम ये है, मेरी वाइफ है। नहीं है वो तेरी वाइफ, तू उसका हस्बैंड है। हेलो सर, मेरा नाम ये है, ये मेरी माँ है। अबे वो तेरी माँ नहीं है, तेरी वजह से वो नहीं है, उसकी वजह से तू है। ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द मोमेंट यू से ये मेरी, वो मेरी, ये मेरी घड़ी हो सकती है, ये मेरा शारदा चिन्ह हो सकता है, ये मेरी माइक हो सकती है, ये मेरी दोस्त नहीं हो सकती, क्योंकि शी इज अ लिविंग बीइंग। आई कैन नॉट ऑब्जेक्टिफाई हर लाइक दैट। अनफॉर्चुनेटली हमने सीता को भी ऑब्जेक्टिफाई कर रखा है यहाँ पे। सोचिए कि रावण को पूरा जो ये मिला था वरदान ब्रह्मा से लिए, आदि पुरुष देखे होंगे, पहला सीन कि मुझे ये नहीं मार सकते, मुझे वो नहीं मार सकते, मुझे यक्ष नहीं मार सकते, दानव नहीं मार सकते, भगवान नहीं मार सकते। तो ब्रह्मा जी ने बोला तूने सबको काउंट कर लिया, मनुष्य को काउंट नहीं किया। तो रावण ने बोला वो तुच्छ मनुष्य मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। फर्स्ट कंडीशन अप्लाइड टू किल रावण, दैट द वन हु कैन किल रावण हैज टू बी तुच्छ। तुच्छ गंदा शब्द नहीं है, ऑर्डिनरी। तो सोचिए कि अगर पहला कंडीशन ही यही है कि रावण को वो मार सकता है जो ऑर्डिनरी होगा, तो राम को ये पता तो नहीं हो सकता कि वो विष्णु थे। इसीलिए कृष्ण के बड़े सारे आपको बचपन के कांड सुनने मिलते हैं, राम के नहीं है। ठीक है, अब राम को भेजे और भगवानों को समझ में आया, अरे यार ये तो ब्लंडर कर दिया हम लोग, ये तो इतना भला मानस भेज दिए जो अपने पिता के एक वचन पे अपना राजपाट छोड़ रहा है, वो समंदर पार करके दूसरे के राजपाट पे हमला करने जाएगा कैसे? इससे ना हो पाएगा। परेशान घूम रहे होंगे, लक्ष्मी जी के पास पहुंचे होंगे, बोले क्या हो गया, तुम लोग का मुंह क्यों उतरा हुआ है? अरे ऐसा ऐसा हो गया, वो तो अपना राजपाट नहीं चला रहे हैं, वो तो कैसे जाएंगे, उनको हम बता भी नहीं सकते वो विष्णु है। बोले कोई बात नहीं, मैं जाती हूँ, आई विल हेल्प हिम। जो मारेगा उसको ऑर्डिनरी होना है ना, उसके आसपास तो हो सकते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग। बोले नहीं नहीं नहीं, आप मत जाइए। क्यों? क्योंकि रावण ने तो सारे 9 प्लैनेट्स को अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। आप जाएंगे, वो कुंडली में हेर फेर करेगा और आप उसके वश में चली जाएंगे। ओ इतनी सी बात, मैं योनि से जन्म ही नहीं लूंगी, धरती से निकलूंगी। कुंडली नहीं है सीता की, क्यों नहीं सोचा हमने अभी तक? जनक पुत्री बनी, राजा जनक के यहाँ परशुराम आए, पिनाका धनुष रख रहे थे, शिव का धनुष। जैसे कृष्ण को 6 साल की उम्र में मालूम था वो कौन थे, सीता को मालूम था कि लक्ष्मी है वो। तो सीता ने बोला अच्छा ये वाला टाइम आ गए। वो 6 साल की लड़की ने पिनाका धनुष उठा दिया परशुराम के सामने, क्योंकि परशुराम से बुलवाना था कि बोलो कि ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लड़की है, इसका समकक्ष तो वही बन सकता है जो इस पिनाका धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाएगा। कहानी आगे बढ़ी, राम आए, प्रत्यंचा चढ़ाने के चक्कर में धनुष टूटा, जो भी वो उस पर नहीं जाते क्योंकि समय कम है। भाई देखिए समय तो कम है। मैं बीच में एक चीज़ और जोड़ देता हूँ कि हम लोग नासा के आने का वेट नहीं कर रहे थे कि वो किसी दिन अपना एक रिसर्च सेंटर बनाए, एक टेलीस्कोप बनाएं और एक स्पेसशिप भेजें और दुनिया को बताएं कि सुनो सूरज बीच में है,
बाकी सब घूम रहे हैं, टोटल 9 प्लैनेट्स है, उसको सोलर सिस्टम बोलेंगे। आपके और मेरे पूर्वज कई हज़ार साल से 9 ग्रहों की पूजा कर रहे हैं, और सोलर सिस्टम शब्द के पहले हमने सौरमंडल शब्द बना रखा था, जो कि रावण के कंट्रोल में था। कमिंग बैक, अब शादी हो गई। शादी होके जब राम और सीता वहाँ पहुँचे तो दशरथ ने बोला, यार मैं तो फंस गया हूँ, वनवास पे जाना पड़ेगा। राम ने, ये लिखा हुआ है, राम ने बोला कि आप मत जाइए, आप तो राजकुमारी हैं, मैं अपना करके आता हूँ। आप सोचिए, लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला नहीं गई, फिर सीता क्यों गई? जिद पे अड़ गई, मैं जाऊंगी मैं जाऊंगी। क्यों? अरे मैं जाऊंगी नहीं तो आगे का खेल कैसे होगा, लेके चलो। साथ में गए। अब वो सीता जो धरती से निकली है, और वो सीता जो 6 साल की उम्र में पिनाका धनुष उठा ले रही है, उसको ये नहीं मालूम होगा कि सोने का हिरण्य होता है? मालूम होगा। शायद राम को नहीं मालूम होगा कि सोने का हिरण्य होता है, क्योंकि वो ऑर्डिनरी थे ना। अब यहाँ पत्नी वाला खेल, मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए, मेरे को सोने का हिरण्य चाहिए, लेके आओ। राम जी जाते जाते खुद गए, लक्ष्मण को बिठा गए, बोले लो सेफगार्ड करो सीता मैया को। मरीच वाला पूरा कांड हुआ, मरीच मरते मरते चिल्लाने लग गया, लक्ष्मण लक्ष्मण। यहाँ लक्ष्मण तक आवाज़ आई, सीता बोले जाओ भैया की मदद करो। नहीं भैया बोले यहीं बैठ के नहीं जाऊँ। इंसल्ट की, तिरस्कार की, बेइज्जत की, डरपोक हो तुम, ये हो तुम, वो हो तुम, डर रहे हो, जा नहीं रहे हो। जाते जाते लक्ष्मण ने खेल कर दिया, लक्ष्मण रेखा खींच दी, बोले इसके इधर मत आइएगा। बोले बेड़ा कर तेरा, जा। लक्ष्मण चल दिए। अब आए रावण ऋषि के भेष में। अब रावण आए, सोचो सीता के सामने रावण कितना कमजोर था कि रावण वहां पे आके ना प्रिंसेस जैसा काम कर रहा था वो लक्ष्मण रेखा के पास, वो पार ही नहीं कर पा रहा है। सीता सोचोगी सब मेरे को ही करना पड़ेगा, वहीं रुक, मैं आती हूं। सीता उधर आई। अब सोचिए कि वो सीता जो इतनी नादान है कि उनको ये नहीं पता था कि सोने का हिरण नहीं होता है, उनको ये कैसे मालूम था कि जब उधर आए और रावण छूने की कोशिश किया तो बोले हाथ मत लगाना, नहीं तो तेरे सर के 1000 टुकड़े हो जाएंगे, तेरे को पुराना श्राप है, याद दिला रही है। इसीलिए रावण हाथ नहीं लगाया, बिना हाथ लगाए लेके गया कि ठीक है लेके चल रहा हूँ। अब जाते समय वो सब गिरा, उनको जाते समय समझ में आएगा कि ये दोनों ऑर्डिनरी राम और लक्ष्मण, इनको मालूम कैसे चलेगा किस तरफ गए। चलो ब्रेड क्रम्स गिराते गिराते चलती हूँ, रास्ता बनाऊंगी। फिर वो भाभी जान वाली बात तो हम कर चुके हैं, तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ। फाइनली आप देखो फिर हनुमान अनदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग। अनदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी के साथ मैं ह्यूमन बीइंग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो वन में रहने वाले नर थे, इसलिए उनको वानर कहते थे। वानर मतलब बंदर नहीं होता है। फाइनली हनुमान वहाँ पहुँच गए, बोले हे सीता मैं आपको लेके चलता हूँ, बैठिए। बोले मैं नहीं जाऊँगी, अगर मैं चली जाऊँगी तो राम यहाँ आएंगे नहीं तो खेल कैसे होगा। अब अगर आप इसको ऐसे देखेंगे ना तो आपको यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत वाला पूरा पिक्चर दिखेगा, जहाँ अर्जुन की जगह पे राम खड़े हैं और कृष्ण की जगह सीता बैठी हुई। तो यू वुमेन हैव द पावर टू गाइड अस थ्रू सिंस फॉर एवर। ये जो एक इक्वालिटी वाला खेल चल रहा है ना कि हम हर वो काम कर सकते हैं जो तुम मर्द कर सकते हो, गलत है। आप इसलिए नहीं बनाए गए हो कि आप हर वो काम कर सको जो मैं कर सकता हूं, आप इसलिए बनाए गए हो कि आप वो भी कर सको जो मैं नहीं कर सकता हूं। दैट इज हु यू आर। जी 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 प्लीज। एक्चुअली समय बहुत कम है, बट विल पिक 2 questions from audience. I would ये जो आपने 5 मिनट लिया था उसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। Only 2 questions. Mic, please. ये दे दो. And it should be a question. कोई भी explanation, introduction नहीं होना चाहिए. It's a humble request. जय श्री राम सर। सर एक रिक्वेस्ट थी एंड 1 क्वेश्चन। रिक्वेस्ट, माय डॉटर वांटेड टू आस्क, आपने एक स्टोरी सुनाई थी गाय और एक प्रेग्नेंट वुमन की, वाज दैट स्टोरी और रियलिटी? It was a reality. It was a reality. It did happen Because in when she real. heard it, she was literally crying. And आज उसको मैंने बोला मैं उन्हीं से मिलने जा रही हूँ। एंड सर इतना सारा ट्रेजेडी और ये सब जो आपकी लाइफ में हुआ, तो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी वेयर यू स्टार्टेड फ्रॉम, लाइक इफ़ वी वांट टू स्टार्ट आवर स्पिरिचुअल जर्नी, बहुत सारे गुरुज हैं, बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारे लाइक अद्वैत, वेदांत, ये वो शंकराचार्य, आपने कहाँ से स्टार्ट करी एंड हाउ वी कैन ऑल्सो डाइव इन टू दैट स्पिरिचुअलिटी एंड गेट द रियल नॉलेज?
मैंने अभी तक जर्नी शुरू नहीं की है, टू बी ऑनेस्ट, एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू बी हम्बल और एनी ऑफ सच पर्सन. मुझे नहीं आता मेडिटेशन कैसे करते हैं, तो मैं कभी ध्यान पे नहीं बैठा हूँ आज तक. मैं किताबें बहुत कम पढ़ता हूँ, सॉरी टू रिवील यू ऑल दैट. मैं गुरु की तलाश में नहीं हूँ, शायद इसलिए गुरु नहीं मिले हैं, या मेरा मानना है कि जब गुरु जो मेरे लिए होंगे वो मिल जाएंगे, उसको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. मेरा जो सफ़र है, मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ, आपको जो भी मेरी बातें सही गलत जो भी लग रही हैं, वो किसी गुरु से, किसी किताब से नहीं आती हैं. वो सारी बातें आती हैं शायद अंदर में कुछ बदला उस सुसाइड के टाइम. देखिए 5 स्टेजेस होते हैं, मैंने पहले भी बताया. हम ही लोगों ने शून्य क्यों ढूंढा, भारतीय ने शून्य क्यों ढूंढा? क्योंकि वो शून्य नहीं ढूंढ रहा था, वो ढूंढ रहा था इन्फिनिटी, अध्यात्म. तो 5 स्टेजेस होते हैं अध्यात्म की ओर अग्रसर होने का. पहले इंसान अपना घर बार छोड़ता है, फिर अपना कपड़ा लत्ता छोड़ता है, फिर खाना वाना छोड़ देता है, उसके बाद फिर अपनी श्वास छोड़ता है जब चाहेगा रखेगा, और आखिरी में अपनी देह छोड़ देता है, अपना शरीर छोड़ देता है. तो ये 5 चीज़ें छोड़ के ना आपकी आत्मा परमात्मा से मिलती है, यू नो, दी ग्रेटर पावर. तो वो अध्यात्म की ओर अग्रसर थे. मैथमेटिक्स पढ़ने वालों को मालूम है कि इन्फिनिटी का रास्ता 0 से होके जाता है. तो वो इन्फिनिटी ढूंढने निकले थे, उनको बीच में 0 मिल गया, उन्होंने दुनिया को दे दिया और बता दिया. ये जो 5 स्टेजेस हैं जो कई लोग बहुत साल में करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि गलती से मैंने एक ही रात में कर मारा, क्योंकि मैं तो सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा था. तो व्हेन आई केम बैक आफ्टर 5 days, आई कुड फील दैट आई एम अ चेंज्ड पर्सन हु वाज नॉट रनिंग बिहाइंड मेकिंग हिज 6th, 7th, 8th रेस्टोरेंट, हु वाज नॉट प्लानिंग कि iPhone 15 Pro Bro, अभी 16 आने वाला है. आई वॉजेंट लुकिंग फॉर एनी ऑफ इट. आई डिडंट नो व्हाट आई वांटेड, विच इज़ व्हेन आई लेफ्ट एवरीथिंग एंड आई स्टार्टेड राइटिंग. सो आई डिड नॉट डू इट, इट हैपेंड. तो आपका सफ़र, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन आपका सफ़र आप ही का रहेगा. ये जो भी गुरु महात्मा बोलते हैं, मेरे को ऐसा लगता है कि वो और अभी मुझे लगता है हमारा समय नहीं आया है. वो शास्त्रों में भी लिखा है कि आखिरी के 25 साल में ये सब किया जाता है. अभी तो गृहस्थ जीवन है, उसी पे ध्यान दिया जाए. दिस इज़ द टाइम व्हेन यू शुड बी मटेरियलिस्टिक. दिस इज़ द टाइम व्हेन आप लोगों को पैशन के बिना कैसे होगा ना. तो कोई भी काम करने के लिए पैशन चाहिए, पैशन के लिए मटेरियलिस्टिक तो होना पड़ेगा. सो वो जब जिसके साथ होना होगा खुद होगा. नोबडी कैन. एक गाना है शुभम मुद्गल का, गा के नहीं बताऊँ, डोंट वरी. वो प्रेम पे गाना है कि कब आए कब जाए, कहाँ ठहरे क्या खाए, है प्यार तो मुसाफिर मर्जी से आए जाए, नाराज़ होता है उगता जाता है, कौन जाने किसकी बातों में आता है, बस उठता है चला जाता है, कितना कोई रोके कितना समझाए, है प्यार तो मुसाफिर मर्जी से आए जाए. तो स्पिरिचुअलिटी मेरे ख्याल से ऐसी कुछ होता होगा. मेरे ख्याल से ये चाह रही थी उस बच्ची को मिले. जी, मैं आपको अलग से कर लूँगा प्लीज़. बिटिया पहले. सर मेरा एक क्वेश्चन, 3 क्वेश्चंस है. बहुत बढ़िया. ये आई आपसे बदला लेने. जब मैं हिंदुइज्म का कल्चर स्कूल में जीना चाहूँ, और या फिर मैं उन चीज़ों के बारे में बात करूँ जो मेरे एज के बारे में नहीं है, लेकिन मैं समझना चाहती हूँ. मेरे फ्रेंड्स के सामने जब मैं ये बोलती हूँ तो मेरे फ्रेंड्स मेरा ही मजाक उड़ाते हैं. तो मैं इन चीज़ों से कैसे बच सकती हूँ, या फिर हाँ, अपनी चीज़ों को कैसे फॉलो करूँ? क्या नाम है आपका? मेरा नाम समर्था है. समर्था, जब मैं छोटा था तो हॉस्टल में भेज दिया गया था. हॉस्टल में मुझे ना सीनियर्स बहुत मारते थे. तो पहले दिन चोट लगी, गाल पे भी लगी और दिल पे भी लगी. फिर बहुत बार जब रोज़ रोज़ पिटने लग गया ना, तो मेरे को उसका डर, उसका दर्द और उसका इमोशन, बैठ जाइए, उसका इमोशन सब खत्म हो गया. फिर मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ता था कि किस दिन मेरे को टीचर मार रहे हैं, किस दिन मेरे को सीनियर्स मार रहे हैं, है ना. तो जो हंस रहे हैं उनको हंसने दीजिए. किसी के हंसने से आप गलत नहीं हो जाएगी. आप उनको तब तक हंसने दीजिए जब तक आपके ऊपर उनके हंसने का प्रभाव, असर, इफेक्ट और अफेक्ट होना बंद हो जाए. इफ़ यू नो यू आर राइट, देन यू आर राइट. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग. ग्रेट. आई वुड सजेस्ट, यहाँ अभी दूसरा सेशन है, जिस वजह से वी हैव टू वेकन दिस प्लेस, दिस स्टेज. यू पीपल कैन ज्वाइन फॉर द अदर सेशन ऑल्सो.
अक्षत जी का जो सेशन था वो पहले 6 बजे का था, लेकिन हमने उसको 3 बजे का इसीलिए शिफ्ट कराया बिकॉज वी न्यू दैट आपको यहाँ पे रुकना ज़रूरी है आफ्टर योर सेशन. सो ही इज़ हियर इन दिस वेन्यू. सो आपके सवाल और सारी चीज़ें वी विल डिस्कस, एंड इन केस इफ़ यू रियली वांट टू डिस्कस आई वुड सजेस्ट आप हाथ में एक बुक ज़रूर रखिए जो उन्होंने लिखी है. इट्स अ लिटरेचर फेस्टिवल, सो अकॉर्डिंगली दे कैन कम, दे कैन मीट यू. एक्चुअली मैं भी यहाँ बुक बेचने ही आया था एक्चुअली. सो मैनी थैंक यू ऑन बिहाफ ऑफ ऑरेंज सिटी लिटरेचर फेस्टिवल, और यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं उन सबकी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया नहीं कहूँगी, धन्यवाद. कुछ तो सीखा कोई. I will just take 45 seconds और नहीं मिनट्स नहीं 45 सेकेंड्स. और आप ही में से पता नहीं, मैं चेहरे से नहीं पहचान पा रहा हूँ, पर 2 अलग अलग लोग मुझको आके बोले थे कि वो कविता ज़रूर सुना दीजिएगा ख़त्म करने के पहले. तो वो एक सवाल के तौर पे लेके 45 सेकेंड्स में मैं सुना लेता हूँ. कविता का शीर्षक है प्रणाम मैं हिंदू हूँ. ये जो पिछले 50 मिनट में हमने बात की है उस पूरे का निचोड़ सार यही है. लिखा मैंने, मगर वो कविता आपका परिचय, इट्स योर इंट्रोडक्शन नॉट माइन. तो ध्यान से सुनिएगा कि रुद्राक्ष की माला में भी मैं हूँ, कृपाण कटार और भाला में भी मैं हूँ. रुद्राक्ष की माला में भी मैं हूँ, कृपाण कटार और भाला में भी मैं हूँ. श्वेत भी हूँ और शुद्ध भी मैं हूँ, विरुद्ध हो मेरे तो युद्ध भी मैं हूँ. इतिहास में बहा आंसू और खून भी मैं हूँ, अब जो कह के मिलेगा वो सुकून भी मैं हूँ. कि इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ, प्रणाम मैं हिंदू हूँ. चिता की अग्नि, गंगा का पानी, कब्र की मिट्टी और लोबान भी मैं हूँ. पीर फकीर अली वली सियावर राम का हनुमान भी मैं हूँ. भोला हूँ सरल भी तुम्हारा मित्र भी मैं हूँ. घोल भी दूँ तुमको घुल भी जाऊँ तुम में कुछ ऐसा चरित्र भी मैं हूँ. इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ, प्रणाम मैं हिंदू हूँ. प्रणाम का भाव भी मैं हूँ, आक्रमण का घाव भी मैं हूँ. सहनशील स्थिर और शांत भी मैं हूँ. देवभूमि भारत का हर प्रांत भी मैं हूँ. शक्ति भक्ति और ना थकती क्रांति भी मैं हूँ. तूफान हूँ और तूफान से पहले की शांति भी मैं हूँ. इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ, प्रणाम मैं हिंदू हूँ. श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद.